Yeah, good evening everyone. Today we are discussing one assignment of Scholars Pride School. So everybody have that assignment, you can see it in front. Question number 1. Piyush, can you read question number 1 Yes, sir. In the, quickly? rea- in the reaction Be2 Be2C plus XH2O gives YB whole twice O2 का whole twice plus CH4. Write the value of X and Y. Okay, my dear student, this is a reaction given to you in which barium carbide is reacting with X molecules of water and is giving Y of beryllium hydroxide plus methane. So you have to guess the answer. Lavanya got the answer 1421. Anybody else who want to change this answer? I hope everybody knows how to balance a given chemical equation. एक बात ध्यान रखना, ये जो BeOH whole twice है, इसे आप लिख सकते हैं BeO2H2 अपने माइंड में और फिर बैलेंस कर सकते हैं. लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट में 2 बेरिलियम है, राइट साइड पर एक है, तभी Y के आगे 2 लगा दिया. तो क्लास बैलेंसिंग में तो अभी मैं डायरेक्ट आंसर बता पाऊंगा, अगर स्टिल कोई डाउट होगा तो इसका अलग से हम वीडियो बना लेंगे. बट आंसर इज 1421. एक बार मैं फाइनल आंसर आप नोट कर लीजिए प्लीज. आंसर हो जाएगा BE2. वैसे उन्होंने x और y की वैल्यू पूछी थी, तो x आ रहा है हमारा 4 और y आ रहा है हमारा 2. एवरीबडी सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? आई रिपीट, x आ रहा है 4 और y आ रहा है 2. सो बैलेंसिंग पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ. अनन्या, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2? This is Yes, my sir. request. Those who are sitting offline, they also keep on noting down the answer side by side. Yes, Name the Ananya. brown colored gas involved when lead nitrate crystals are heated in a dry test tube. So can you guess the brown color gas, anyone? Nitrogen dioxide. Very good. The reaction is PbNO3 whole twice on heating gives PbO plus NO2 plus O2. Group में भेजो उन्हें. I repeat, it's PbNO3 whole twice. It's PbNO3 whole twice on heating gives PbO plus NO2 plus O2. And balancing part you can do it yourself. Can anyone tell me the type of the this reaction? What kind of reaction is this? Decomposition Thermal reaction. thermal decomposition. Very good Tanisha. Thermal decomposition reaction. और बेटा जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स है वो किस वजह से है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से. ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में एक बार आ रखा है क्वेश्चन, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है. तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब कोई मुझे बताएगा N2O क्या होता है? N2O. N2O is laughing gas. Name is nitrous oxide. लिखो साथ साथ. ठीक है, प्लीज राइट डाउन द आंसर साइड बाय साइड, डोंट वेट. ओके, नेक्स्ट वी हैव, देयर आर टू इक्वेशंस गिवन. स्नेहा, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3? Yes, sir. What पढ़ो. is the difference between the following two reactions? Magnesium plus two molecules of hydrogen chloride give magnesium chloride plus hydrogen gas. Second is NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Who will tell me the difference? Anyone? Just raise your hand. Nobody? Come on, it's a very easy one. Sir, Sir, First one is yes, Piyush. reaction. sir, first one is displacement reaction and second one is double displacement reaction. वेरी गुड. फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. भाई डिस्प्लेसमेंट क्यों है? ध्यान से देखो, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है. आपको सीरीज तो पता ही है कनन. केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों? हम आएंगे आज पकाने. तो आपको पता है मैग्नीशियम बहुत ऊपर और हाइड्रोजन बहुत नीचे है. जो टॉप में होते हैं बेटा वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो बीच में होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जो लास्ट में होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. तो पहले का आंसर है डिस्प्लेसमेंट और दूसरे का आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट. बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती हैं जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. मान लो तुम्हारे पास कोई चीज है और मेरे पास कोई चीज है, हम दोनों वो इंटरचेंज कर ले आपस में, राइट? तो उसे क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट. मैं फिर से आंसर बता देता हूं. थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर है डिस्प्लेसमेंट और सेकंड पार्ट का है डबल डिस्प्लेसमेंट.
Okay, Ananya, I want you to read all questions, beta, one by one. Question number 4, please. Okay, sir. Double displacement reactions are also known as precipitate reactions. Why? My dear, live recording is going on, so I want you to be a bit fast, okay? So double displacement, what is the other name of double displacement reaction? ये जो अभी ऊपर लिखी थी हमने NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, राइट? जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उन्हें प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं. आप आंसर लिख सकते हैं, दिस इज बिकॉज आर प्रेसिपिटेट, बैलेट ब्रैकेट में लिखिए रेजिड्यू, सॉलिड रेजिड्यू. This is because a precipitate, bracket में लिखिए, solid residue is left behind after the chemical reaction. I repeat, this is because why double displacement are called precipitation reaction. This is because a solid residue or precipitate या precipitate bracket में solid residue is left behind after a chemical रिएक्शन. एक बेटा सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है केमिकल रिएक्शन के बाद. इसी वजह से इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उन्हें क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट तो कहते हैं, पर प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी कहते हैं. एग्जांपल बहुत सारे हैं, कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे देना, ठीक है? जैसे येलो प्रेसिपिटेट वाली बोलोगे, PbNO3 twice plus 2Ki gives PbI2 plus 2KNO3. yes, very right, Lavanya said correctly. PbNO3 whole twice plus Ki, पोटेशियम आयोडाइड. रिएक्शन याद होनी चाहिए अब तक आपको. गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. कलर बताओगे लेड आयोडाइड का? येलो, येलो प्रेसिपिटेट होता है, राइट? ऐसे डिफरेंट होते हैं. ये वाली भी मैं दिखाऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो आपको, राइट? ओके, आई होप आप लोग भी लैब में जाके परफॉर्म कर रहे होंगे. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 9th. Ananya, can you please read question number 5? State one basic difference between a physical change and a chemical change. बहुत इजी है फिजिकल और केमिकल चेंज में. सुहानी बता सकते हो? 9th क्लास का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर है 5. सुहानी देखो, हम लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना. देखिए, फिजिकल जो चेंज होता है बेटा, उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. सपोज टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को फाड़ोगे तो पेपर बनेगा. इधर मेरे पास आओ जल्दी. टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को रब फाड़ोगे तो पेपर ही बनेगा. तो टीयरिंग ऑफ पेपर बेटा क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है? टीयरिंग ऑफ पेपर जो है, टीयरिंग ऑफ पेपर जो है वो फिजिकल चेंज हो गया, राइट? साथ साथ मेरे आंसर लिखिए फटाफट. बर्निंग ऑफ पेपर में नया वो रेजिड्यू बन जाता है, ठीक है ना? पहले देखो, सबसे आसान, पेपर को फाड़ोगे पेपर ही बनेगा. तो ये किसका एग्जांपल है? फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, राइट? फटाफट लिखिए. वी आर एट आंसर नंबर 5, ठीक है? और केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा? एक नया सब्सटेंस बनता है, रस्टिंग ऑफ आयरन. ये चीजें या कोई भी जितनी भी केमिकल इक्वेशन दुनिया भर की पढ़ते हो वो सारी केमिकल चेंज ही है. तो उन्होंने एक ही डिफरेंस पूछा, ये हमने बता दिया. आप चाहें तो 9th क्लास से और डिफरेंसेस भी नोट कर सकते हैं, ठीक है? पर उन्होंने एक ही बेसिक डिफरेंस पूछा है, तो सबसे बेसिक यही डिफरेंस है. अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Why is hydrogen peroxide kept in colored bottles? अगला जो क्वेश्चन है वो ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पहले तो फॉर्मूला बता दो. H2O2. Why it is kept in colored bottles? Yes, क्योंकि अगर बेटा ये लाइट के साथ रिएक्शन करेगा, because with light it will do photolytic decomposition reaction. और क्या होगा? आपस में ही सब्सटेंस मतलब चेंज हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी. ओके, तो लाइट के साथ क्या करेगा? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन करेगा, राइट? साथ साथ लिखते रहिए. वन वर्ड के तो आंसर है, या 1 लाइन होगी ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो अगर लाइट के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन करता है. दिस इज बिकॉज इट इज केप्ट इन कलर्ड बॉटल. नेक्स्ट क्वेश्चन अनन्या. Zinc liberates hydrogen gas when reacts with dilute hydrochloric acid.
whereas copper does not. Write the reason. ओके, जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इक्वेशन बोलो कोई। Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2। ये मैंने लैब में भी परफॉर्म कराई है स्कूल में। Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2। जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, पर यही H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आप कैसे टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है? यू विल टेक अ बर्निंग मैचस्टिक नियर टू इट, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। पता है सभी को हाइड्रोजन गैस। और O2 के केस में क्या होगा? थोड़ी और अच्छे से जलने लग जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। और CO2 के केस में क्या होगा? बुझ जाएगी। It will, the burning candle or the burning matchstick will extinguish, right? So ध्यान रखना। तो बेटा ये आंसर अभी भी आपने नहीं बताया कि कॉपर के केस में Cu plus HCl क्या होगा? CuCl2 plus H2। वेरी गुड लवन्या, आंसर इज नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस वजह से Cu प्लस HCl नो रिएक्शन होगा। कहीं CuCl2 मत लिखाना कि नहीं सर आपने तो क्यूप्रस या क्यूप्रिक क्लोराइड पढ़ाया था। अरे भाई रिएक्टिविटी सीरीज को भी देखो कि कॉपर जो है वो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों? है पहले आ रहा है, हाइड्रोजन पहले आ रहा है, क्यों बाद में आ रहा है? क्यों फॉर कॉपर? तो कॉपर इसका मतलब है कम ताकतवर है, लेस रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। अनन्या। Yes, sir. Aluminium is a reactive metal, but is still used for packing food articles. एलुमी Write one reason for its use. एल्यूमिनियम, आप अपनी एल्यूमिनियम फॉइल में खाना जरूर पैक करके ले जाते होगे, ठीक है ना? ये कह रहा है एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, केदारनाथ का माली आलू, आलू फॉर एल्यूमिनियम, काफी टॉप पर है, बट फिर भी इसे पैकेजिंग फूड आइटम्स में यूज करते हैं। और एक रीजन आपको बताना है ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही होता है, पर यहाँ पर फिलहाल इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यही आप आंसर लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट? एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सबसे बेस्ट आंसर है इसका। इसी वजह से ज्यादा रिएक्टिव होते हुए भी स्टिल वी यूज इट फॉर पैकिंग आर फूड मटेरियल। ओके, तो नेक्स्ट बेटा असर्शन रीजन है, ये अभी मैं आराम से डिस्कस कराता हूँ वीडियो में। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू MCQs, क्वेश्चन नंबर 1414 अनन्या। आई होप बाकी बच्चे ऑनलाइन वाले भी मार्क कर रहे हैं साथ साथ। Yes, sir. स्नेहा, अगर कोई कुछ रह जाए तो ये वीडियो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, फिर आप देख सकते हैं। ओके, Yes, साथ sir. साथ साथ नोट करती रहिए, दोबारा टाइम नहीं मिलेगा हमें इसे डिस्कस कराने का। 14 क्वेश्चन प्लीज। Name and state the law which is kept in mind while we balance a chemical equation. आपको नेम बहुत बेटा, ऑप्शन भी पढ़िए। A. Law of equal proportion. B. Law of conservation of mass. C. Dalton's law. D. Avogadro's law. एवोगाड्रो तो 9th में था अगर ध्यान हो। एनीवन हु कैन टेल मी द आंसर? Sir, option B. Sir, B for bull, B for bull, very so many answers। B for bull is correct, क्योंकि लॉ जो है हमें बैलेंस करते ही क्यों है? बिकॉज वी नीड टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन करो या डिफाइन डिफरेंशिएट केमिकल, ऐसे क्वेश्चन अब आना बंद हो गए। आप ऐसे जैसे इस असाइनमेंट में क्वेश्चन है ऐसे आते हैं बोर्ड में, तो एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आपके स्कूल के एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन तब आपको अच्छे से आएंगे जब आपने चैप्टर की एक एक लाइन बड़े अच्छे से पढ़ी होगी, इन बिटवीन द चैप्टर पढ़ा होगा, या आपने वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, राइट, जो भी हैं चैनल पर। तो सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाके ऐसे क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। ओके, तो आंसर फॉर 14th इज बी फॉर बुल। नोट कर आंसर, 14 का आंसर बी फॉर बुल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव 15। अनन्या, थके तो नहीं हो आई होप? No, sir. What is
breaking and making of bonds in इसका chemical बताओ। reaction called A. Chemical reaction, B. Chemical equation, C. Chemical bonding, D. Chemical equilibrium. इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है बेटा जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं। अब मैंने पहले ही बताया ये सीनियर टीचर्स ने असाइनमेंट बनाए हैं। हमने 10th के एनसीईआरटी में शायद ही हमें इक्विलिब्रियम कोई वर्ड मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में, राइट? पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं, लगातार वो रिएक्शन होती रहती है। तो एनी गेसेस फॉर द आंसर? नो, द आंसर इज सी फॉर कैट, केमिकल बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा आपके चैप्टर के बियॉन्ड है, समझ रहे हो? ये चैप्टर 1 से ना होके थोड़ा चैप्टर 3 से है। पर मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्डिंग, एक होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट में शेयरिंग होता है और इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आपके पास कोई बुक है 10th में, आप जब 10th पास कर जाओ और अपनी बुक्स 9th नेक्स्ट 10th को दे दो, राइट? या आपने अपनी 9th की बुक्स दे दी होंगी, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और जब शेयर हो, एक ही भाई बहन एक ही उसमें पढ़ रहे हैं, लखमीर सिंह शेयर कर रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। तो आंसर फॉर दैट इज 15 का आंसर है सी फॉर कैट, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट 16 प्लीज। A red-brown gas is released along with O2 and lead oxide on heating lead nitrate. It is an example of A. Combination reaction, B. Oxidation reaction, C. Decomposition reaction, D. Reduction reaction. लेड नाइट्रेट, ये वही सेम तो रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, पीबीओ बन रहा है प्लस NO2 बन रहा है, ब्राउन फ्यूम्स वाला, प्लस O2। ये थर्मल डीकम्पोजिशन थी। हाँ, जो भी बोलेगा इसमें आवाज आएगी। डीकम्पोजिशन, तेज से बोली। यस, गौतम इज करेक्ट, आंसर इज डीकम्पोजिशन। यहाँ फर्दर उसका टाइप नहीं लिखा हुआ पर आपको पता होना चाहिए थर्मल डीकम्पोजिशन है। सो आंसर ऑफ 16 इज सी फॉर कैट, ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्लीज। What are the coefficients of the correctly balanced equation? FeO2O3 plus CO plus gives Fe plus CO2. A 0 2 2 3, B 1 3 2 3, C 1 2 2 2, D 2 2 6 4 3. ओके, दिस इज फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स फेरिक, आयरन दे रहा है, फेरिक ही होगा ये, ठीक है, प्लस CO2 दे रहा है। तनीशी ने बोला सी फॉर कैट, एनीवन? बैलेंस आप खुद कर सकते हैं। तनीशा ने बोला सी फॉर कैट। और किसी ने की है बैलेंस? बताइए। कनन, सी फॉर कैट। ओके, दो बच्चों ने सी फॉर कैट बोला, एनीवन एल्स? Sir, B. बेटा करके देखिए पहले, पीयूष करके देखिए। आई होप रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ atoms in reactant side should be equal to total number of atoms of product side. Answer is C for cat. Okay, next question please. Burning of a candle is A physical change, B a chemical change, C slow change, D gaseous change. देखो मैं बार बार कहता हूं कि फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अगर कैंडल को बर्न भी करोगे तो भी वैक्स ही बच जाता है नीचे। तो व्हेन कैंडल बर्न्स, वैक्स इन अ कैंडल कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड इनटू अ लिक्विड। दिस इज अ फिजिकल चेंज एज इट इज अ मैटर, एज इट इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर एंड कैन बी रिवर्स। इसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस जो है रिवर्सिबल भी होते हैं, राइट? Wax near the flame burns and convert into carbon dioxide. This carbon can't be again converted into wax, so this is a chemical change. अब जो near the, तो ये देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, फिजिकल केमिकल दोनों हो सकता है, राइट? पर ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि कैसे आप बर्न कर रहे हैं। तो अभी मैं फिलहाल इसके आंसर में, इसके आंसर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसी वजह से केमिकल चेंज कह रहे हैं इसे, राइट? तो अभी इसका आंसर केमिकल चेंज लिख लीजिए, अगर कोई चेंज होगा तो मैं मार्क करा दूंगा आपको। तो क्लास ये जो था हमारा पहला वीडियो था, इसमें हमने
अभी अपार्ट फ्रॉम दिस योर असर्शन रीजनिंग के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, विल कम विद मोर वीडियोस रिलेटेड टू दैट। थैंक यू।